Hi, my name is Vishal and I am from Team CLAT Prep. In this video, we are going to discuss about the latest change in the pattern of CLAT 2024. So what was the change? Yesterday night, there was a notification from the CLAT consortium that the number of questions for this year will reduce from 150 to 120. As you can see, here I have highlighted. Now there will be 120 questions instead of 150 questions. Though there is no change in the overall time is still 2 hours. Again, all the 120 questions will be distributed in the 5 sections that are English language, current affairs including general knowledge, legal reasoning, logical reasoning and quantitative techniques. That means there is no change in the sections, only the number of questions have been changed. The only thing they are saying is that they will try their level best to make the paper more student friendly. So therefore, क्या chances है कि पेपर का लेवल इजी की जाए? Let's see. सबसे पहले हम बात करते हैं जो 120 क्वेश्चंस होंगे उनके पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं? What can be the possible distributions of the number of questions for each section? English might get reduced to 25 questions from 30 questions. If you talk about general knowledge, 30 questions. Legal reasoning, 30 questions. Logical reasoning may reduce to 25 questions and quantitative techniques may reduce to 10 questions. अब इनका overall breakup कैसे होगा? Maybe it is possible if there are 25 questions in the English language. In my opinion, there can be 5 passages followed by 5 questions each. If we talk about general knowledge, if there are 30 questions, then there can be 6 passages followed by 5 questions each. अगर मैं legal reasoning की बात करूँ, वापस अगर मैं 30 questions की बात कर रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चंस को आप वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 6 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ईच. मैं ये नहीं कहता कि 6 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस डेफिनेट है. इट इज क्वाइट पॉसिबल वो 5 पैसेजेस दे दें फॉलोड बाय 6 क्वेश्चंस ईच. ये तो क्लैट कंसोर्शियम पे ही डिपेंड करेगा. देन लॉजिकल रीजनिंग, अगेन देयर आर 25 क्वेश्चंस, सो देयर विल बी 5 पैसेजेस फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस ईच इन माय ओपिनियन. एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इफ देयर आर 10 क्वेश्चंस, देयर विल बी 2 sets of 5 questions each. ये एक पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का इन ईच सेक्शन जो हमें लगता है. ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरीके से लिए एवरी सेक्शन विल हैव सम राउंड फिगर्स, राइट? इफ वी टॉक अबाउट the number of questions, if they reduce like 150 to 120 questions, there is a 20% change decrease, right, in overall number of questions. तो क्या ये भी possibility हो सकती है हर एक section में if we take the reduction by 20% in the number of questions, तो क्या number of questions होंगे? English language might have 24 questions in that case. General knowledge might have 28 questions. Legal reasoning might have 32 questions, logical reasoning 24 questions and quant 12 questions. यहां पर हमें हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 20% से रिड्यूस करके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये सिर्फ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशंस की बात है. वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि इसी तरीके से ब्रेकअप होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन. जो 2 मोस्ट लाइकली हमारे अकॉर्डिंग थे वो हमने आपके साथ शेयर किया है. अब नाउ इफ देयर आर 24 क्वेश्चंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू माइट वंडर कि ये 24 क्वेश्चंस को हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे. देयर इज नो फिक्स पैटर्न. क्वाइट पॉसिबल देयर आर 5 पैसेजेस wherein 4 passages might be followed by 5 questions each and 1 passage will be followed by 4 questions, or else there are 5 passages wherein 2 passages will be followed by 6 questions each and 3 passages will be there with 4 questions each, or which I feel very bleak chances are there wherein they might keep the number of passages as 6 followed by 4 questions each. ये बहुत bleak chances है क्योंकि उनका overall objective to reduce the number of questions is that you can actually complete the paper in the given time frame easily. 120 minutes 120 questions. पहले आपके पास on an average per question 48 seconds होते थे. अब आपके पास on an average per question 1 minute होगा. 120 questions if we take in 120 minutes, क्या हम इसको solve कर सकते हैं? अगर क्लैट कंसोर्शियम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि यस यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम फ्रेम, दे वुड नॉट गो फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पैसेजेस. इनफैक्ट हमें ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ पैसेजेस भी रिड्यूस होंगे अकॉर्डिंगली विद द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो 24 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी मैंने बताया. इसी तरीके से दे कैन बी वेरियस पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन
distributions for all the questions here, 28 questions in current affairs. We don't know, can there be 7 passages with 4 questions each, या फिर हो सकता है it is quite possible कि आपके पास 5 पैसेज तो आ जाए, 5 क्वेश्चन के, 1 पैसेज आ जाए 3 क्वेश्चन के. You don't know किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. अगर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें, सिमिलरली 12 क्वेश्चंस, क्या देयर विल बी 3 सेट्स विद 4 क्वेश्चंस ईच, देयर विल बी 2 सेट्स विद 6 क्वेश्चंस ईच, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के चेंज होने की वजह से हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में चेंज आनी चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ इज शुड देयर बी एनी चेंज इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? ये सबसे बड़ा पैनिक फैक्टर अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में. जब से कल से क्लैट कंसोर्शियम ने ये रिलीज किया है नोटिफिकेशन, तब से हमारे पास एम्पल क्वेश्चंस आ चुके हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के कॉल्स आए हैं हमारे पास. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में पूछ रहे थे, सर क्या होगा, क्या हमारे स्ट्रैटेजी में चेंज आना चाहिए? लेट अस इवैल्यूएट सम फैक्टर्स. Let us answer this question. पहले हम कुछ फैक्टर्स को इवैल्यूएट करते हैं. नंबर 1, Is there any increase or decrease in the number of sections? क्या आपके नंबर ऑफ सेक्शंस में कोई चेंज आए हैं? No, there are still 5 sections. उन्हीं 5 सेक्शन की बात हो रही है. वही इंग्लिश लैंग्वेज है, वही आपकी जीके है, वही आपकी लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. उन्होंने कहा है कि सिलेबस में शायद चेंज ना हो. तो अगर आपके नंबर ऑफ सेक्शंस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है, तो माय आंसर इज देयर शुड बी नो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी in regards to the sections. Okay, second question, is there any change in the overall syllabus? No, again the answer is no. क्लैट ने अपने तरफ से कुछ भी नहीं कहा है, कंसोर्शियम की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि there will be change in the syllabus. तो इसका भी आंसर क्या है? No. Does number of questions getting reduced change the preparation strategy? Yes. If there is a huge increase or decrease in the number of questions per section, let's say all of a sudden legal section में जो है आपके number of question gets reduced to 10, quant section के number of question let's say it gets increased to 25, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर भी मैं कहता कि हाँ आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में चेंज आना चाहिए. बट जो बाइफिकेशंस हमने अभी आपके साथ शेयर किया है, डू यू फील दैट इतने मार्जिनल डिक्रीज के साथ वेयर द वेटेज ऑफ एवरी सेक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम लाइक इट वाज इन द प्रीवियस पेपर्स, तो क्या आपको लगता है कि आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में चेंज आना चाहिए? अगर बहुत मार्जिनल सा डिक्रीज है, अगेन द आंसर इज नो. नेक्स्ट फैक्टर, हैज द क्लैट कंसोर्शियम रिलीज्ड एनी सैंपल पेपर? क्या कोई सैंपल पेपर रिलीज हुआ इस साल के लिए अभी तक? नो. जब तक उनके तरफ से कोई सैंपल पेपर नहीं आता, हम आपको यही कहेंगे कि बिल्कुल भी पैनिक मत होइए. गो विद द सेम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच यू हैव बीन अडॉप्टिंग फॉर द लास्ट मॉक्स यू हैव अटेम्प्टेड इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा. अगर कोई सैंपल पेपर रिलीज होगा, उसके बाद हो सकता है कि वापस देयर विल बी सम टिप्स एंड ट्रिक्स व्हिच विल बी देयर फ्रॉम आवर साइड. लेकिन तब तक प्लीज एंश्योर डोंट गो बाय एनी काइंड ऑफ rumors, don't go by any kind of tricks given by various people around you. Just stick to the instructions given by your faculties. Next, do you think that your preparation strategy should change? That is what the question was. If the answer to all the above questions is no, I would highly recommend the last question's answer is again a no. So I request, आपको मालूम है आपको उन्हीं 5 सेक्शंस पे वर्क करना है, आपको मालूम है ओवरऑल सिलेबस में कोई चेंज नहीं आए हैं. So our recommendation, our sincere advice to all of you who are going to write the CLAT examination this December, we would recommend you, highly recommend you, please do not panic. Please stick to your preparation strategy. If at all कोई changes होने भी होंगे, so let's wait, let's see क्या कोई sample paper आता है या कोई और notification आता है. तब तक please do not panic at all. This is our sincere recommendation. And with this, I'll end my video. Thank you so much everyone.